at this in this way, that there are four types of problems that we all face. One type of problem, the first type of problem, is something which we can address or we can resolve, is through some kind of personal contemplation, some personal introspection. So, by using the techniques of contemplation and meditation. So that those are those kind of problems which are easy for an individual to address, to get to the bottom of it, that why this happened or what is the case, by just focusing, concentrating without getting any kind of external guidance or anything like that. Such kind of problems can be addressed. They are very simple ones. So बेसिकली हमको टाइम नहीं मिलता है यूजुअली टू सिट एंड पॉज एंड रिफ्लेक्ट, तो इसीलिए हमको आंसर नहीं मिलते हैं. तो दे आर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर इजी टू रिजॉल्व बाय सिंपल रिफ्लेक्शन, अ लिटिल बिट ऑफ कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन. थोड़ा मेडिटेशन में बैठोगे, थोड़ा माइंड शांत होगा तो पता चल जाएगा उसका आंसर. तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है. फिर उससे जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, are those which get created because of the conditionings that we get from our environment, from our parents, elders, teachers, influencers, society, all these things, right? तो जो हमने सुना है, समझा है, हमें बताया गया है कि ऐसे है, ये नहीं सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. तो ये सारी जो कंडीशनिंग्स हमने अडॉप्ट की है, ये वाली कंडीशनिंग्स को खुद से रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं देख सकते उनको. द थिंग इज कि अगर हम देख पाते उनको, तो देन दे वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम, they would already be resolved. The fact that they are still a problem in our life is because we are not capable of seeing them. So यहाँ पे एक external help लगती है, somebody who can give us a different perspective, who can show us things differently. ये हमें नहीं पता चलेगा. तो ये DIY काम है नहीं. This is something where external help is required. So when I'm saying external help, by external help I don't mean professional help only. I mean external, third person लगेगा. वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, वो अलग बात है. इट ऑल डिपेंड्स कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और वो जो थर्ड पर्सन है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसका क्या स्किल लेवल है, वो कितना उसको कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. बट बिना थर्ड पर्सन के पॉसिबल नहीं है उस प्रॉब्लम को देखना, उसमें से बाहर निकलना. तो दिस इज वेयर talking to a counselor, talking to a life coach, or somebody like that is useful. Those people have the right kind of techniques and right kind of psychologists. All these people have right kind of tools and techniques and capability to be able to give you that direction. तो यहाँ पे उन लोगों का रोल आता है. बाकी अगर आपकी लाइफ में कोई मैच्योर, emotionally intelligent, mindful person hai who can show you the direction and show you a different kind of perspective, then they can also help you. Main thing is कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स खुद से बैठ के सॉल्व नहीं हो सकती. तो दैट्स सेकंड. फिर थर्ड जो प्रॉब्लम आती है, थर्ड प्रॉब्लम इनसे और ज्यादा
बड़ी होती which are what we call like the जिनसे एनर्जी बॉडी करप्ट हो जाती है. So certain type of traumas, people go to phobias, addictions, um, sexual abuse, physical abuse, mental abuse, जो मतलब काफी when I say abuse, I am talking about like extreme cases. तो ऐसा छोटे मोटा नहीं. तो थोड़ा सा थोड़ी सी मारपीट हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस उस टाइप से नहीं. मैं एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ, ब्रूटल केसेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसे है somebody got raped और somebody got kidnapped, या किसी को अ, बंद रखा कहीं पे. सो वेरी एक्सट्रीम केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि हमारे माइंडसेट या कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है. दिस इज समथिंग विच वी कॉल लाइक दे आर प्रेटी मच लाइक एक्सीडेंट्स, किसी के साथ भी हो सकता है. तो दे लीव अ बिगर मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, or a broken relationship, a broken marriage, जहाँ पे the person or two people were involved for a very long time. तो वहाँ पे भी it's like that. और loss of a business, loss of a job, जो लोग बहुत दिन से कहीं पे जॉब कर रहे थे, बहुत सालों से कहीं पे जॉब कर रहे थे, बहुत इन्वेस्ट किया था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट था बहुत ज्यादा, बिजनेस कर रहे थे, आइडेंटिटी लिंक थी उस चीज से. तो जब ये चीजें चली जाती हैं, आप कहीं पे 15-20 साल से काम कर रहे हो और अचानक वो कंपनी शट डाउन हो गई, दैट कंपनी डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी, या दैट कंपनी वाज अ फ्रॉड और उन्होंने अपना रैप अप किया और वो निकल लिया. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन टू एनीवन. इसमें आपकी कंडीशनिंग्स की बात नहीं आती है. दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट दैट हैपन, बट यू वर इन्वॉल्व इमोशनली इन दैट. आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत साल दिए हैं उस चीज को. आपने अपने बिजनेस में बहुत टाइम लगाया और वो बिजनेस फेल हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई बड़ा झटका लग गया और बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि आप रिकवर नहीं कर पाए और अब वो शट डाउन हो गया. तो दीज थिंग्स कैन क्रिएट आइडेंटिटी क्राइसिस इन अ पर्सन. तो ये जो प्रॉब्लम होती है, दैट एनर्जेटिक बॉडी करप्ट हो जाती है इससे, ये बहुत अंदर तक जाता है. ये माइंड लेवल के जो प्रॉब्लम्स है उनसे डीप है. तो ये चीजों से बाहर निकलने के लिए अगेन ये डीआईवाई है ही, डू इट योरसेल्फ टाइप की चीजें हैं. इसके लिए एनर्जी हीलर्स की जरूरत पड़ती है. पीपल हु आर ट्रेन्ड, हु आर स्किल्ड, who are gifted to do this kind of work are the ones who can get you out of this. ये डीआईवाई करने का काम है ही. और दूसरा कि खुद से भी करने का नहीं. तो इफ यू योर सेल्फ आर एन एनर्जी हीलर, तो जब आप इन प्रॉब्लम्स में फंसते हो तो फिर आपको दूसरा चाहिए ही रहता है, एनर्जी हीलर. तो दुनिया का बेस्ट हार्ट सर्जन भी होगा ना, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सेकंड नंबर पे जो सर्जन होगा उसकी हेल्प लगेगी. वो खुद अपना हार्ट खोल के ऑपरेशन नहीं कर सकता. ही कैन डू इट फॉर अदर्स, ही कांट फिक्स हिमसेल्फ. तो ये कुछ रियलिटीज हैं लाइफ की. नो मैटर हाउ गुड कोच यू बिकम, डजंट मैटर, आप दुनिया के बेस्ट कोच होगे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को खुद नहीं देख पाओगे, दूसरों की देख पाओ. वो जो ओशो एग्जाम्पल लेते हैं कि मछली होती है, मछली को पानी नहीं दिखता है, पानी में ही होती है वो, हमेशा पानी में ही पैदा होती है, पानी में ही मर जाती है, तो उसको पानी नहीं दिखता है. तो जो कोई बाहर खड़ा है ना, वो ही बता सकता है कि ये पानी का डिफरेंस, कि ये पानी है. तो जो आप जिस चीज में हो, जिस प्रॉब्लम में हो, उसमें तो आप पैदा हुए हो उसी में ही, तो आप नहीं देख पाओगे, आपको दूसरों का दिखेगा. सो व्हेन यू हैव द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एवरीथिंग, it is utilized for others. You cannot utilize that um, knowledge and that skill for yourself. So this is something you all should be very clear
कि भले ही आप लेजर कोचेस बन रहे हो और you are good and everything, so no doubt about all that. लेकिन जब आप लाइफ में कभी किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो अंडरस्टैंड, डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू डील दैट योरसेल्फ, जस्ट गेट हेल्प। वो वर्थ नहीं है। आप अब इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो कि आपका स्किल सेट ना दूसरों के लिए है। आपकी ये जो विद्या है, आपका जो ये स्किल है, ये दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप नहीं कर सकते। एक एनर्जी हीलर खुद की एनर्जी बॉडी जब करप्ट है तो उसको नहीं ठीक कर सकता है। उसको दूसरा ये लगेगा एनर्जी हीलर। तो ये सेट है। ठीक है। जितनी जल्दी इन बातों को समझ जाओगे उतनी जल्दी लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि हम अननेसेसरी के डीआईवाई टैक्टिक्स में अटकते नहीं है। तो फर्स्ट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डीआईवाई हैं, वो कर सकते हो। तो खुद से बैठ के रिफ्लेक्शन कर सकते हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की, तो वो कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हो। किसी से कुछ छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रही है किसी से, कोई पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, तो खुद से बैठ के क्वेश्चन आंसर करके इंट्रोस्पेक्शन करके बाहर निकल सकते हो। इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो हेल्प की प्रॉब्लम्स, यू हैव टू टेक हेल्प, देयर इज नो अदर ऑप्शन। even if you are a person who helps others to do this, solve this, still you need help। तो ये इतना सिंपलिस्टिक है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, इतना ही है। तो जितनी जल्दी हो सके हेल्प लो और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो ये तो तीन हो गए। फिर जो फोर्थ लेवल की प्रॉब्लम है, जो एनर्जी के आगे की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वो होती है जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। वो इस लाइफ की है ही नहीं। इस लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने ये तीन कैटेगरीज में ऑलरेडी डिफाइंड। एक, फर्स्ट, जो आपको रोज बिहेवियरल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, दुनियादारी के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन जिनकी वजह से आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी के साथ, ये फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स। सेकंड लेवल की प्रॉब्लम्स आपकी कंडीशनिंग, जो आपने अडॉप्ट की है, जो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या अडॉप्ट किया, क्योंकि जब आप वो चीजें अडॉप्ट कर रहे थे तब आप बहुत छोटे थे। तो ये बचपन में ही वो माइंड जो है वो प्राइम हो चुका है। आप जब वो चीजें अडॉप्ट कर रहे थे, जब चीजें एब्जॉर्ब कर रहे थे, उस टाइम पे आपको मालूम भी नहीं था कि आप ये सब चीजें अडॉप्ट कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब ये बड़े होके आपके सामने आ रही है। तो ये कॉन्शियस लेवल की बातें हैं ही, सब कॉन्शियस लेवल की बातें हैं, जिनके लिए आपको कोई कोच लगेगा जो आपके सबकॉन्शियस को प्रोब करके आपको उस चीज को कॉन्शियस लेवल पे लेके आ सकता है। तो ये हो गया। और फिर थर्ड लेवल इज द एनर्जी सिस्टम दैट वी हैव। द एनर्जी बॉडी गॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ ऑल द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट हैपन, लॉस, डेथ, फोबियाज, एडिक्शंस, ये सारी चीजें, इनकी वजह से एनर्जी बॉडी पर। ये तीन चीजें हैं जो इस लाइफ से रिलेटेड है। चौथी प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है, जो पुराने एक्यूमुलेशंस, पुराने संस्कार, पुराना डेट, उससे रिलेटेड, कि अब कुछ इस लाइफ में कुछ डेट जो है वो क्लियर करना है, कुछ लोन चुकाना है। शायद पूरा चुकेगा या नहीं चुकेगा पता नहीं, पर जितना होगा क्लियर करेंगे, कैसे करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपको और ज्यादा परेशान क्यों करेंगी? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यू विल प्रोबब्ली थिंक कि आई एम सच अ गुड पर्सन, और मे बी अनदर पर्सन यू सी एंड यू सी कि दैट पर्सन इज सच अ गुड पर्सन, सच अ काइंड हार्टेड पर्सन, सबकी हेल्प करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। कैसे ये सब प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, कैसे ये सब हो रहा है कि समथिंग कम्स एंड उनकी, वो इतने अनफॉर्चुनेट, इतना अनलक्की, ऐसे लगता है कि वो इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे भगवान उनके साथ इस तरह से कर रहा है। ये ऐसी सिचुएशंस देख के ना आपका मन ऐसे करता है ना कि भगवान से तो विश्वास ही जैसे उठ जा रहा है। ये
कैसे पॉसिबल है कि इस इंसान के साथ ये चीज हो रही है। तो ये जो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इस लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये आपको आंसर मिलेगा ही नहीं इस लाइफ में उसका। आप देखोगे, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करोगे या उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करोगे, एंड यू विल सी कि कोई रीजन ही नहीं है कि फॉर दिस पर्सन, अगर हम ये बोलते हैं कि अच्छे काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, ये सारी बातें अगर हम सुनते हैं, तो फिर ये तो अप्लाई ही नहीं हो रही है ये कहीं भी, ये सब चीजें यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि ये सब सही भी है क्या, ये सब हम सुनते हैं, ये भगवान जैसी कोई चीज है भी, या बस हमने अपने मन का ऐसा बना रखा है या कुछ है। तो ऐसे लोगों को देख के ना, वो आपका जो सारा फेथ है ना, वो शेक हो जाता है कि ये अब मुझे सही नहीं लग रहा है, ये दिस इज नॉट, आंसर नहीं मिलता है इस लाइफ को देख के कि ये नहीं समझ में आ रहा, इट्स नॉट कंप्यूटिंग, द डॉट्स आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। वंस अगेन, अगर उनके डेप्थ में जाना है, अगर ये जानना है कि कौन सी पास्ट लाइफ से ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों क्यों है, अगर इसकी डेप्थ में जाना है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाके ये चीजें तो देखनी पड़ेगी। यू कांट गो बाय योर सेल्फ इन योर पास्ट लाइफ, regress yourself in your past life. It's impossible. I am a past life regression therapist. Even I can't do it myself. So, mm, if I have to do it, then Anamika has to do it for me. So, both of us are PLR therapists. तो हमको करना है तो एक दूसरे का करना है, हम खुद का नहीं कर सकते। इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल टू डू इट, क्योंकि इट इज डन अंडर अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। तो हिप्नोटिक स्टेट में आप अवेयर स्टेट में नहीं रह सकते हो। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू 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 डू दैट। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसको ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट करके, साइंटिफिकली ही पॉसिबल नहीं है। आप हिप्नोटिक स्टेट में एक अलग स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहते हो, एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, अलग एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और वो चीज करने के लिए आपको जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो अवेयरनेस, जो अलर्टनेस चाहिए, वो साथ साथ एक ही साथ मेंटेन, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वो करना। कोई नहीं कर सकता, हम डिजाइंड ही नहीं है वैसा करने के लिए। तो ये ऐसा बात हो गई कि आप सो भी रहे हो और जाग भी रहे हो एट द सेम टाइम। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है टू डू इट। तो आप कितने भी अच्छे पीएलआर थेरेपिस्ट हो, आपको खुद का करना है तो आपको दूसरे की हेल्प लगे। ये एज सिंपल एज दैट। तो दैट्स द फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहां पे अगर हमको आंसर चाहिए, या तो हम इन बातों को मान के चले कि होगा कुछ पुराना डेट जिसको मेरे को क्लियर करना है, तो अब मैं खुशी खुशी उस डेट को क्लियर करूं। या तो हम उस चीज को मान के चले, और अगर नहीं माना जा रहा है, अगर लगता है कि नहीं मेरे को तो आंसर चाहिए, मेरे को तो देखना है, मेरे को तो प्रूफ चाहिए या कुछ भी है, तो फिर गोइंग टू अ पीएलआर थेरेपिस्ट एंड गेटिंग द रिग्रेशन डन, so you can get the answers of those problems that you're stuck in, is the way forward to really get to the bottom of this, कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, why do I deserve this kind of लाइफ और दिस काइंड ऑफ लक, ये क्यों हो रहा है। तो उसके आंसर के लिए तो वही डीआईवाई, तो इसमें से इन चारों में से सिर्फ फर्स्ट स्टेज है जो डीआईवाई है, बाकी तीन स्टेजेस डीआईवाई